Last day we have completed class 11th English poetry lesson first, Mercy. And now we are going to explain the stanzas. Look at first the lines of these stanzas. But mercy is this sceptred way. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God Himself. An earthly path does then shows likest gods when mercy seasons justice. Have you memorized these lines of mercy? These are the last lines of lesson mercy. And when we will have to explain these lines, then at first we write about a reference. Okay? When anyone going to start explanation of the passage or stanzas, then one must have indicate beginning to end. One must have to indicate from beginning to end lines. Hint, but mercy the seasons justice. Seasons justice. One will have to indicate from beginning and end of the lines of the passage or stanzas. Then we will have to mention reference. And reference begins with these beautiful poetic lines have been taken from the lesson mercy. Mercy, which is a part of the comedy Merchant of Venice. The Merchant of Venice. Composed by William Shakespeare. William Shakespeare. A bard of Avon, born in 1564 in England. Okay, as you are seeing how we make reference of any passage or any stanzas. Mention here, if you are trying to explain a passage, then you must not mention beautiful poetic
if you are trying to explain a prose passage of a prose, then you need not to mention poetic lines. But when you are going to explain, okay, I'll tell you, when you are going to explain of a passage of prose, then you need not to mention beautiful poetic. But if you are going to explain poetry or poem, then you must add here beautiful poetic lines. If you are explaining prose passage, then you should mention only these lines have been taken. Only these lines have been taken if you are trying to explain of a prose passage. But if you will have to do the explain of a poem of a poetic lines, then you must mention here these poetic lines have been taken from the lesson. After that, lesson name, and if you can tell this lesson have been derived from, then as you are seeing here, these poetic lines have been taken from the lesson Mercy, and which is a part of the comedy Merchant of Venice, composed by William Shakespeare. After composer name, after describing or mention the composer name, one must tell about composer or poet in few words. As we mentioned here, a part of you must be attentive. Then, after mentioning composer or writer, one must give some words about prose, about writer or composer. As we have mentioned here, a Bard of Avon, born in 1964 in England. It is, these words describe about Shakespeare. Okay. After mentioning a reference, one must have mentioned about context. कॉन्टेक्स्ट, आप हिंदी में इसे प्रसंग कह सकते हैं. प्रसंग है इन कॉन्टेक्स्ट we will have to mention here gist of these lines. Gist सार, जैसे कि आप हिंदी में सूरदास की लाइनें या तुलसीदास जी की लाइनों का आप एक्सप्लेनेशन करना होता है. सूरदास जी की लाइनें हैं, कन्हैया नंद बाबा के मणियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, किलकारी मारते हैं और अपना हाथ पैर पटकते हैं, उसी फर्श पर अपनी परछाई को देखते हैं. तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, केवल ये कहते हैं कि वहां पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है. वैसे जब हम किसी का कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो देखते हैं उन लाइनों में किस बात को पॉइंट आउट किया गया है, केवल वही दिखाते हैं. यहाँ पर और बहुत सी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं होती, जस्ट पॉइंट आउट, केवल उस बात को हम पॉइंट आउट करते हैं जिसके विषय में इस स्तंजास पर, इन लाइनों पर बताया जाता है. हमने अभी बताया कि तो सूरदास जी की 4-6 लाइनें हैं. बताया गया कि कन्हैया नंद बाबा के मणियों से जड़े हुए आंगन के बीच घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, अपनी परछाई देखकर हाथ पैर पटक रहे हैं. तो उसका प्रसंग में या कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर कन्हैया की बाल लीला का वर्णन है. ठीक वैसे ही यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि इन लाइनों में, इस पैसेज में, इस स्तंजा में किस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है. सो
कि जो हमारे कंपोजर हैं, जो पोएट हैं, वो एक्सप्लेन किए हैं द चीफ पेक्यूलियरिटीज ऑफ मर्सी। मर्सी के मुख्य गुण के विषय में यहाँ बताया गया है। मर्सी की जो दिव्यता है, जो उसकी यूनिकनेस है, जो विलक्षणता है, उसकी खूबियों के विषय में बताया गया है। इन लाइनों में क्या बताया गया है, वो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में की जाती हैं। कॉन्टेक्स्ट में इतना बताने के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बताते हैं कि इन लाइनों में किसके विषय में बताया जा रहा है। इट्स ओके, पॉज कर दो। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं और देखते हैं इन लाइनों में। आप लाइनें देख रहे हैं, बट मर्सी इज दिस सेप्टेड वे, इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, it is an attribute to God himself, and earthly power doth them so likest gods when mercy seeketh justice। इन लाइनों में जो कुछ कहा गया है, सेम वही चीज हमें ओन वर्ड में एक्सप्लेनेशन में, हाँ, एक फैक्ट को हम अगर 2 या 3 प्रकार से कह सकते हैं, वो हम कहने के लिए फ्री होते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में वही कहा जाता है जो इन लाइनों में बताया गया है। आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है मर्सी इज दिस सेप्टेड वे। मर्सी राजा के रूलिंग पावर से ग्रेटर है, उससे बढ़कर है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और यह एक दैवीय, यह एक डिवाइन, यह एक यूनिक क्वालिटी है। एंड अर्थली पावर डथ देम सो लाइकेस्ट गॉड्स, और तब सांसारिक शक्ति दैवीय शक्ति की समान प्रतीत होती है जब न्याय में दया मिल जाती है। इन्हीं सारे फैक्ट्स को आप एक्सप्लेनेशन में कहेंगे इन योर ओन वर्ड्स। ओके, एक्सप्लेनेशन इज स्टार्ट्स फ्रॉम इन दिस stanza the poet William Shakespeare tells about importance of mercy and said that it is greater than emperor's ruling power or royal lord, and it is lived in emperor's heart. Emperor or king or ruler, emperor's heart, and it is not an ordinary, but it is a divine quality or quality of the master of this universe. And earthly power or ruling power of dynasties looks like God when judgment is given by the view of humanity or mercy. एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने बताया है कि इस stanza में जो हमारे पोएट विलियम शेक्सपियर हैं, वो हमें मर्सी के इम्पोर्टेंस के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि इट इज अ ग्रेटर देन एम्परर्स रूलिंग पावर। ये किसी शासक के, किसी बादशाह के, किसी राजा के जो रूलिंग पावर है उससे बढ़कर है। मर्सी किसी बादशाह के, किसी राजा के रूलिंग पावर से बढ़कर है। इट इज लिव्स इन एम्परर्स हार्ट, यह बादशाह के या राजा के हृदय में निवास करती है। एंड इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी, यह कोई सामान्य क्वालिटी नहीं है, बट इट इज अ डिवाइन क्वालिटी, यह एक अपने आप में डिवाइन यूनिक क्वालिटी है, या क्वालिटी ऑफ द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, या ये इस ब्रह्मांड के जो मालिक है, ईश्वर है, ये उनकी क्वालिटी है, ये कोई सामान्य क्वालिटी नहीं है। आखिरी पावर और रूलिंग पावर ऑफ डायनास्टी, सांसारिक शक्तियां या किसी भी राजवंश की शासन की शक्तियां लुक्स लाइक गॉड, वो तब दैवीय शक्तियों की तरह प्रतीत होती हैं। सांसारिक शक्तियां या किसी या राजवंशों की शासन करने की शक्तियां वो दैवीय शक्तियों के समान प्रतीत होती हैं। when judgment is given by the view of humanity or mercy, जब न्याय
जब कोई न्याय मानवता व मर्सी दयालुता के मद्देनजर होकर दिया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय दिया जाता है, तो वो निर्णय देवताओं के निर्णय की तरह प्रतीत होता है। वो ऑर्डिनरी निर्णय नहीं लगता है, वो सांसारिक शक्ति नहीं लगता है ये दैवीय निर्णय है, गॉड जजमेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हाउ वी एक्सप्लेन ऑफ द स्तंजा एंड एज अ नोट्स enters about the lines, that lines are heart touching, and if it is possible to mention here about figure of speech, then one must mention here figure of speech. Figure of speech simile is used here. It's okay.